کل بڑے علماء یہاں تشریف لائے، میری والدہ محترمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعزیت کے لیے آگے ہو جاؤ۔ تو ایک علماء کی جماعت بیٹھی تھی، میں نے انہیں ایک بات کہی تو وہ اس بات سے بہت خوش ہوئی ہے اور متاثر ہوئی ہے۔ رات تقریباً 12 بجے سید صفاء اللہ شاہ صاحب بخاری، استاد مولانا نصر اللہ صاحب اور حقانیہ کے محتمم علماء حاجی محمد عارف صاحب دوبارہ آئے، دن میں بھی آئے تھے۔ تو میں نے ان علماء کو بات کہی، اگر چاہتے ہو کہ اللہ حقیقی عزت دے اور اللہ تم سے دین کا کام لے، جتنے شاگرد بیٹھے ہو، میرے بزرگ بیٹھے ہو، دین کا کام کرو، اور تمہاری مخالفت اتنی ہو کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، سر نیچے کر کے قرآن حدیث پڑھانا نہیں چھوڑنا ہے، تمہیں نقصان تو نقصان کی گرم ہوا بھی نہیں پہنچے گی۔ صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مشکات شریف حدیث پاک کی کتاب ہے، زندگی میں نے کم از کم 35 دفعہ پڑھائی ہے۔ اس میں 6000 حدیثیں ہیں، اور جن سے میں نے پڑھی ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے خصوصی شاگرد، اور ان کا نام تھا فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ۔ تو یہ سارا ثواب میرے استاذ محترم کی روح کو پہنچے گا، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ 8 نوجوان، کیونکہ کئی لوگ مدارس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اللہ انہیں خوش رکھے، کئی کرتے ہیں۔ میرا مدرسہ نہ کوئی فنڈ اس کا جمع ہے، نہ کوئی مستقل آمدن ہے، انجمن اور نمازی اور آپ لوگ چلا رہے ہیں۔ یہ محتاج نہیں، احوج ہے ہر موقع پہ۔ زکوٰۃ، عشر، قربانی کی کھالیں، ویسے عطیات، ہم سر نیچے کر کے خدمت کر رہے ہیں، اور یہی شاگردوں اور اولاد کو سبق دیا ہے۔ بہت بڑا رینک ہے دین کی خدمت نہ چھوڑنا، دنیا بھی سکون والی ہوگی، قبر بھی اور حشر بھی۔ سب سے پہلے مولانا حفیظ اللہ ولد فیروز خان صاحب چترال، عرصہ 4 سال سے اس فقیر کے پاس پڑھ رہے ہیں، اس سال فارغ ہو کے انشاءاللہ جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں دعوت فکر دیتا ہوں، اگر ایسا مدرسہ آپ کے تعاون کا مستحق نہیں ہے تو پھر آپ نے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ حافظ امتیاز احمد دوسرے نمبر پہ ولد سخی جان صاحب چترال، عرصہ 4 سال سے رہ رہا ہے، اور الحمدللہ مدرسہ میں میٹرک بھی کی ہے۔ تیسرے نمبر پہ عرفان محمود ولد عبدالسلام صاحب مرحوم، آف جگنا گجرانوالہ، 4 سال سے یہ یہاں زیر تعلیم ہے، مدرسہ میں میٹرک بھی کی ہے بفضل اللہ، اور بڑا لائق طالب علم ہے۔ حافظ محمد عبد الرحمن، یہ اس فقیر عاجز کا بیٹا ہے، پوری کتابیں حفظ بھی یہاں کیا ہے، اور مدرسے میں رہ کے FA کے میرا خیال ہے کچھ پیپر رہتے ہیں دینے ہیں، الحمدللہ۔ 5ویں نمبر پہ محمد عبد المتین ولد حاجی محمد دین عابد صاحب ترنول اسلام آباد، آپ خوش ہوں گے 7 سال سے، ذرا آپ کھڑے کرتے جاؤ، 7 سال سے اس نے اس مدرسے میں پڑھا ہے، FA کیا ہے مدرسے میں رہ کے، یہ اور عبد الرحمن کچھ میرا خیال 1-2 پیپر رہ گئے ہیں، کر رہے ہیں۔
छठे नंबर पे मोहम्मद याकूब वल्द मोहम्मद हुसैन साहब इस्लामाबाद का रहने वाला है। 8 साल हो गए हैं। मेरे अजीजों, नाराज नहीं होना, एक बात सुननी है। प्रोपेगेंडा मुहिम बहुत सख्त होती है। मैं या कोई और, मैं तो छोटा आदमी हूं, जिंदगी में बड़े प्रोपेगेंडे सुने हैं, पढ़ाई नहीं, ये है वो है, डटे रहे हैं। आज ये मेरी इज्जत देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारे मदरसे के फारिग शुदा तालिब इल्म जो मुकम्मल आलिम हैं, जिन्होंने आज भी बेफज़लिल्लाह माशाअल्लाह जुमा पढ़ाया है, क्योंकि पढ़ाते हैं, मैं उसी पे कह रहा हूं, पढ़ाया है, आ जाए तो इस मस्जिद में आपके लिए जगह ना हो जो मुकम्मल फारिग है। बड़ा सस्ता सौदा है। जिंदगी में कुछ तकलीफें बर्दाश्त की हैं, लेकिन रब्बे कायनात ने बहुत नवाजा है। अल्लाह पाक इस्तिकामत अता फरमाए। हाफिज मोहम्मद उमर खत्ताब ये जबरदस्त तकरीर करता है और इस दफा तीसरी पोजीशन पूरे जिले में इसने हासिल की है तकरीरी मुकाबला में। इसके वालिद साहब का नाम मोहम्मद अफजल बादशाह है। कोट गुमान धर्मकोट गुजरावाले का रहने वाला है। 1 साल के लिए मेरे पास आया था मिशकात शरीफ बेजावी पढ़ने के लिए। बहुत लायक तालिब इल्म है बेफज़लिल्लाह ताला। आखिर में हाफिज मोहम्मद जुबैर वल्द मौला मोहम्मद सफ्तर खान साहब, इन्होंने मेरे उस्तादी से पढ़ा है। इसके वालिद साहब ने, ये जेलम के रहने वाले हैं। 1 साल आए हैं मिशकात शरीफ पढ़ने के लिए बेफज़लिल्लाह ताला। अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी इस मेहनत को कबूल फरमाए। मडियाले और इलाका वालों, खुदारा बच्चों को हाफिज कराते हो, बहुत अच्छा करते हो। एक तो उनकी मंजिल याद रखने की फिक्र किया करो, दूसरे किताबें पढ़ाया करो। पता ही नहीं चलता, 8 साल गुजर जाते हैं। फिर औलाद को लगाओ भी दीन की तरफ, पढ़ें और पढ़ाएं। दुनिया की जिंदगी गुजर जाएगी, इंशाअल्लाह फायदा होगा। मैंने एक आसान सी बात अपनी वालदा मोहतरमा के जनाजे पे सुनाई थी और फिर सुनाता हूं कि गुजरावाला में एक आदमी है, उसके एक बच्चा आलिम जबरदस्त मेरा शागिर्द है। 3 बच्चे इंजीनियर हैं। सारे घर वाले कहते थे इसका क्या बनेगा, ये जो मडियाले में पढ़ रहा है। खुदा की कसम इस वक्त वो बादशाह बन के वक्त गुजार रहा है और 3 इसी तरह बैठे हैं, उनका कोई काम नहीं है। गलतफहमी दूर करो, दीन पढ़ाओ, औलाद को आलिम बनाओ। अल्लाह पाक बड़ी बरकत से नवाजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिरी हदीस सुन लें मिशकात शरीफ की, बड़ी बरकत होगी। मेरे आका अलैहिस्सलात वस्सलाम ने फरमाया, जो मेरी हदीस खुशी से सुने, या अल्लाह उसके चेहरे को तरोताजा रखना और जन्नत का मुस्तहिक बनाना। मेरे उस्ताद मोहतरम जिनसे मैंने हदीस पढ़ी, दारुल उलूम देवबंद से पढ़ के आए थे, कभी मुझ जैसे कमजोर तालिब इल्म पे नाराज होते, एक जुमला फरमाते थे, आज अनवर शाह काश्मीरी पढ़ाने वाला नहीं, नूर मोहम्मद पढ़ने वाला नहीं। मुझे उनकी बात पूरी जिंदगी याद रहेगी। पढ़ें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन बाज़ इब्न हकीम अन अबीहे अन जद्दिही अन्नहु समिअ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़ी क़ौलिही तआला कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास क़ाल अंतुम तुतिम्मून सबईन उम्मा अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अलल्लाह ताला। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व दारमी व क़ाल तिर्मिज़ी हाज़ा हदीसुन हसन। असल में एक लड़का पढ़ता है, दूसरे सुनते हैं। आपके घर 6, 7, 8 बच्चे हैं, कैसे कंट्रोल करते हो? मेरे पास 100 मेरा बच्चा है मदरसे में।
इनको कंट्रोल करना अल्लाह के फजल से। कभी आपने नहीं सुना होगा बच्चे लड़े हैं, बेफजल अल्लाह। इनका इख्तिलाफ था, एक कहता था आज मैं इबारत पढ़ूंगा, दूसरा कहता था मैं। तो हम भी फिर तजर्बाकार हैं, मैंने कहा मैं पढ़ूंगा, सारे पीछे पढ़ लेना ताकि इख्तिलाफ भी न रहे। तो इस पे ये सारे खुश हो गए कि इस बाप ने बात सही की है। बाज बिन हकीम से रवायत है, वो अपने बाप से, वो उनके दादा से, उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, उन्होंने फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन, ये जो कुरान की आयत है, तुम बेहतरीन उम्मत हो, निकाली गई हो लोगों के लिए। मेरे आका ने इसकी तफसीर की है कि तुमने 70 उम्मतों को मुकम्मल किया है। हालांकि 70 नहीं, बहुत हैं, लेकिन चूंकि कुरान हदीस में 70 का अदद बोला जाता है कसरत पे, तो मेरे आका का मतलब ये था बड़ी उम्मतें गुजर गई हैं, तुम आखिर में आए हो, मैं खातमुन नबीयीन हूं, तुम सारी उम्मतों को ख़त्म करने वाले हो, और तुमने वो ज़माना पाया है, वो ज़माना पाया जो किसी ने नहीं पाया, तुम तमाम उम्मतों में से बेहतर भी हो, और तुम्हारी इज्जत भी अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा है। फिर इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया, इब्न माजा, दारमी ने, तिरमिज़ी ने कहा यह हदीस हसन है। ये मिशकात शरीफ की आखिरी हदीस हमें बता रही है कि हमारा मकाम अल्लाह के यहाँ और नबियों और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ क़यामत के दिन और दुनिया में भी बहुत आला है और होगा। लेकिन उसकी वजह है अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करो, बुराई से रोको। जहां भी शरीयत के खिलाफ कोई काम देखो, जरूर उसकी मुखालफत किया करो, अच्छे अंदाज से समझाया करो, न समझा सको तो कम अज कम दिल में बुरा जाना करो, चाहे घर में, चाहे खानदान में, चाहे दोस्तों में, दुश्मनों में जो बुरा इंसान हो उसकी मुखालफत और उसे समझाना, कम अज कम दिल से बुरा जानना, ये ईमान की निशानी है। बेहतरीन उम्मत हो इस वजह से बेहतरीन कि तुम नही अनिल मुनकर करते हो और अमर बिल मारूफ करते हो, और अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर आ जाए, इंसान कामयाब व कामरान होता है। जिंदगी ने वफा की, मिंबर पे बैठा हूं, इंशाअल्लाह इसी काम में रहेंगे। जिंदगी का पता नहीं, अगर मौत आ गई जल्दी, दुआ करना अल्लाह मग़फ़िरत कर दे। अब मैं आपकी दुआओं का ज़्यादा मोहताज हूँ। वालदा मोहतरमा रुखसत हो गई, 97 साल मेरी वालदा ने उम्र पाई, और सबक देने के लिए माएँ बहनें भी सुन रही हैं। 18 दिन की नमाजें सिर्फ मेरी माँ की बेहोशगी की हालत में कज़ा हुई हैं। हुक्म दिया था कि मेरी चरपाई उठाने से पहले फिदिया दे देना। हमशीरा से पूछा, उसने कहा भाई जी बेफिक्र हो जाओ, सिर्फ 18 दिन की नमाजें हैं बेफज़लिल्लाह। और 16 हाफिज़ कुरान मेरी वालदा अपनी औलाद और औलाद की औलाद में छोड़ के गई हैं, और 6 मुस्तनद आलिम छोड़ के गई हैं, और जिन्हें नाजरे पढ़ाया, बश्ती जेवर पढ़ाई, और पहले दौर में पक्की रोटी होती थी तालीमुल इस्लाम, वो तो ऐसे इतनी शागिर्दने हैं हम शुमार नहीं कर सकते। मैं अब दुआओं का ज़्यादा मोहताज हूँ। हाजी मोहम्मद हनीफ साहब, हाजी कबीर साहब, और जितने आप बैठे हैं, बाबा सिंधी, अब मेरे लिए ज़्यादा दुआएं करना। अलबत्ता एक लोगों में बात मशहूर है, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ कि आप फलां की माँ फौत हो गई, दुआ के दरवाजे बंद हो गए। वाकई वो दुआ नहीं करेंगे, लेकिन जिसके माँ बाप फौत हो गए वो जिंदगी में जो कर गए हैं ना, कई चीजें अल्लाह पाक उनकी मौत के बाद अता फरमाते हैं। वो रहमत के दरवाजे माँ बाप की वजह से खुले रहते हैं। आखिर में बात, अगर हो सके जिंदगी में ऐसे करना, मुझ जैसा कमजोर, और मैं जिंदगी में अपनी वालदा से जितना अटैच रहा हूँ, मेरी बिरादरी, मेरे दोस्त, मेरे शागिर्द जानते हैं। जनाजा भी बेफज़लिल्लाह तसल्ली से पढ़ाया। माँ की पता नहीं क्या हिकमत थी, फरमाया था कब्र में तूने उतारना है। मुझ जैसा दिल का कमजोर, लेकिन बड़े अदब व एहतराम से अपनी वालदा को अता रहमान साहब के समेत, अपने भतीजों के समेत उन्हें कब्र में रखा, पड़ियाँ रखी, पत्थर गारा लगाया, अल्लाह के हवाले किया।
क्योंकि माँ का हुक्म था। दूसरा, कोई माँ को उतार रहा हो बहन को कब्र में, ऐसे न किया करो, कब्र में खुद उतरा करो और उनको अल्लाह के हवाले किया करो। ईमान भी मजबूत होता है और उस मैयत का हक भी अदा हो जाता है। अल्लाह पाक इन मेरे शागिर्दों को दीन का खादिम बनाए, बाअमल बनाए, और जितने असातिज़ा से इन्होंने पढ़ा है अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। इस इदारे के जितने मुआविनीन फौत हो गए, हाजी मोहम्मद बशीर साहब हैं या पहले बुजुर्ग हैं, अल्लाह सबकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए। मेरी तरफ देखो, मेरा और आपका टाइम बहुत थोड़ा है। अगर 50 साल भी है थोड़ा है, 10 साल है फिर भी थोड़ा है, 1 साल है फिर भी थोड़ा है, 1 हफ्ता है फिर भी थोड़ा है। कोई नहीं, आखिरत की हमने तैयारी की। साफ बात है, तहज्जुद शुरू करो, पक्के नमाजी बन जाओ, 5 नमाजें, सच बोलो, नजरों की हिफाजत करो, गीबत और चुगली से अपने आमाल को जाय न करो। घर में माँ बाप जैसे भी हैं, अगर गुनहगार भी हैं, तुम्हारे घर में बहुत बड़ा खजाना है, कमा लो कमा लो कमा लो, वरना पछताओगे। थोड़ी सी जिंदगी रह गई है। अल्लाह खात्मा बिल ईमान फरमाए और इस इदारे को अल्लाह पाक क़यामत की सुबह तक रवां दवां फरमाए। जाओ बच्चों, याद रखना, कौम की रोटियां ज़ाय नहीं करनी, हक नहीं छुपाना, डट के बयान करना है। कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई मुख्तारे कुल नहीं, कोई हाजिर व नाजिर नहीं, कोई आलिमुल गैब नहीं, कोई हमेशा जिंदा रहने वाला नहीं, कोई समीओ बसीर नहीं। अगर हो सका वो वक़्त आएगा, फटियों पर बैठे होगे, ना हबीबुर रहमान तुम्हारा उस्ताद मडयाले में होगा, ना ये बुजुर्ग होंगे, आखिर दुनिया से जाना है। हो सका तो हमें दुआओं में याद रखना कि अल्लाह हमारी कब्रों को मुनव्वर करे और अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। अब खुतबा जमात और आखिर में इंशाअल्लाह 2 निकाह और इकराम भी है और उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ भी होगी। रब्बना